ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ नाम की एक सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश किया गया। 1984 के एंटी सिख दंगों के पेंडिंग केसेस को रीओपन करने का। सो उसके डायरेक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ रंजन चंदेल जी, वो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ मौजूद ने। पापा आपके बाल कहाँ गए, बताइए ना। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ट्रेलर थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़ करता सीगा। गल ये है कि ये सब नूं पता है कि सिखां दे उत्ते सिखां दा कतलेआम होया, उन्हां दे उत्ते जुल्म होया। तो हाँ, जो पवन मल्होत्रा का कैरेक्टर है जिसका नाम गुरसेवक है, तो कहानी में दो टाइम लाइन चलती हैं। एक आज के ज़माने की, जब गुरसेवक एक सिख है और उसकी एक बेटी है जो पुलिस में है, और वो 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुए दंगों का एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त उसको एक तस्वीर मिलती है जो कि उसके पिता की जवानी के वक्त की तस्वीर है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਵੱਲੋਂ मतलब इस दे उत्ते ऑब्जेक्ट भी कर दिता गया सी कि इदां दी सीरीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ कि क्योंकि हमें पता है कि हमने किस इंटेंशन से इस कहानी को बनाया है, तो हमें मालूम था कि हाँ ये एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अजकल ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ जिस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਜਨ ਚੰਦੇਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੰਜਨ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। थैंक यू सर। ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मुझे पंजाबी समझ में आती है, तो आप पंजाबी में बात कर सकते हैं। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ है ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ डायरेक्टर साहब जवाब देंगे? जी, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो अब तो ग्रहण को आए हुए हो गया है वक्त, है ना, लेकिन हाँ, जब उस वक्त ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो उसको देख के कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया था, जो ट्रेलर से उन लोग को शायद नज़र आया होगा, और उसको लेके कुछ रिएक्शंस भी आएंगे। तो अब मैं बता सकता हूँ कि कहानी क्या है, क्योंकि अब तो सबने देख ली है। और तो हाँ, जो पवन मल्होत्रा का कैरेक्टर है जिसका नाम गुरसेवक है, तो कहानी में दो टाइम लाइन चलती हैं। एक आज के ज़माने की, जब गुरसेवक एक सिख है और उसकी एक बेटी है जो पुलिस में है, और वो 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुए दंगों का एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त उसको एक तस्वीर मिलती है जो कि उसके पिता की जवानी के वक्त की तस्वीर है। और जिस तस्वीर में वो लड़का बिना दाढ़ी, बिना पगड़ी के दिखाई दे रहा है ना,
तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप सिख हो, और वो दंगा जो हुआ था वो तो उसमें बहुत सारे सिख कम्युनिटी के साथ गलत हुआ था, जो दोबारा कभी ना हो। जिन्होंने किया, जिनसे हुआ, वो दोबारा ना हो, हम ये चाहेंगे। तो वो सवाल है कि आप क्यों हो उस दंगे में, वो तो इनके खिलाफ वो दंगा था। तो वही जब सीरीज़ देखने के बाद जो कहानी उसकी पता लगती है, तो कहानी ये है कि 1984 के वक्त की वो लव स्टोरी है, जो कि ऋषि और मनु के बीच की लव स्टोरी है, जिसमें ऋषि जो कि एक बिहार का रहने वाला लड़का है, क्योंकि ये कहानी बोकारो में सेट है, जो उस वक्त बिहार होता था, और मनु जो कि पंजाब से आई हुई, मोगा गांव से आई हुई एक लड़की है, जो कि बोकारो में, जिसके पिता कारोबार के लिए आए थे, इसलिए वो बोकारो में है। और इनकी लव स्टोरी है, और कैसे शहर में धीरे धीरे वो पूरा माहौल बन रहा है। और 84 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, तो वो जो पूरी सोशियो पॉलिटिकल एक इंसिडेंट होती है, जिसको हम राइट कहते हैं, उसमें ये इनोसेंट लोग, जो कि एक इनोसेंट पैशनेट लव स्टोरी है, जिसमें दो मासूम लोग, कैसे उनकी लाइफ अफेक्ट होती है उस घटना से। और फिर सीरीज़ वो कहानी बताती है कि जब कुछ लोग ये कर रहे थे, जो लोग सिख कम्युनिटी के साथ गलत कर रहे थे, तो क्योंकि ये लड़का उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो ये भी कहीं उनमें शामिल नज़र आता है। लेकिन कहानी के अंत में ये बात पता चलती है कि क्योंकि उसके आसपास के सब लोग, वो भीड़, वो मॉब, वो आवेश में आके वो सब कर रहा था, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसको पता था कि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मैं उनके खिलाफ हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए वो उनके साथ होते हुए मनु के परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। मनु जो सिख परिवार है, तो मनु जिससे वो प्यार करता है, उसका परिवार, और भी और लोग जो शहर में हैं, तो जिससे कि वो भीड़ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग दूसरी चीज़ों में लग जाएं, जिससे कम से कम जान माल का नुकसान हो। और बड़ा मकसद जो उसका था कि मनु और उसके परिवार को बचा सके। जी। तो मनु के कैरेक्टर में आपने वामिका गब्बी को लिया। और जी, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं, क्योंकि मैं वामिका के लिए थोड़ा एक्साइट हो गया। जी। तो हाँ, तो वो जो आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो लड़का पहले एक दूसरी कम्युनिटी से था, फिर वो शामिल था, लेकिन उसका मकसद कुछ बहुत नेक था, और वो कुछ लोगों को बचाने के लिए उस भीड़ के साथ था, जिससे कोई सबूत मिलता है कि वो उस भीड़ के साथ है, जिससे उस पर शक आता है। लेकिन वो घटना जब हो जाती है, और वो किस तरीके से मनु को अफेक्ट करती है, और उससे एक बच्ची होती है, जो बच्ची इसकी नहीं है, लेकिन उस बच्ची को बड़ा करने के लिए वो उस बच्ची को अपना लेता है, क्योंकि वो प्यार करता था मनु से। और कहीं ना कहीं क्योंकि उस कम्युनिटी के साथ गलत हुआ था, तो ये एक स्पिरिचुअल सेंस में भी एक उसका अपना रिडेम्पशन है कि वो सेवा करते 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 सिख धर्म को अपना लेता है। तो ये तो एक बहुत, मेरी समझ में बहुत नेक और बहुत पॉजिटिव साइड होगी, साफ दिल, पवित्र इंटेंशन था। जी। तो इसलिए वो ट्रेलर में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कहानी बहुत गहरी है और कॉम्प्लिकेटेड है। और ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ उसको कैसे फेस किया फिर आप? हाँ, तो ये हुआ था कि ट्रेलर जब आया था तो सडनली एक रिएक्शन आना शुरू हुआ, और ख़ासकर इन ग्रुप से और दिल्ली और पंजाब रीजन से। और लेकिन वो देख के वो रिएक्शन जब आना शुरू हुआ, तो क्योंकि हमें पता है कि हमने किस इंटेंशन से इस कहानी को बनाया है, तो हमें मालूम था कि हाँ, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। और कुछ देर के लिए तो ये भी हुआ कि कुछ लीगल केसेस फाइल होने शुरू हो गए हमारे अगेंस्ट, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट। लेकिन हमें इस बात का यकीन था कि जैसे ही सीरीज़ बाहर आएगी, तो लोगों को देख के वो बात साफ़ हो जाएगी कि वो कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, वो मिस इंटरप्रिटेशन किस वजह से हो रहा है, और कहानी क्या है। तो वही था, वो कहानी आई, सीरीज़ जब रिलीज़ हुई, लोगों ने देखा। और एक मैं आपको बड़ी ख़ास बात बता दूं कि बहुत सारे लोग, जो लोग वो इम्पल्सिव रिएक्शन देने लग गए थे इस ट्रेलर देखने के बाद,
उनमें से बहुत सारे लोगों ने सीरीज़ देखने के बाद वापस हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वो हमारी गलतफहमी थी। तो ये हमारे लिए एक सैटिस्फैक्शन का ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਵਾਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਮਿਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? तो वामिका की कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि उस कहानी की जो बात करें तो लड़का था ऋषि जो कि बिहार से बिलोंग करता है और मनु जो कि पंजाब से आई हुई लड़की है। तो उसके लिए मैं ये चाहता था कि हम ऐसे लोगों को कास्ट करें जो जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो किरदार हैं, उनको जितना सच्चाई से निभा सकें। जी। तो उसके लिए मैं चाहता था कि मैं जो मोस्ट ओरिजिनली फिट हों और जिनके एक्टिंग स्किल में भी वो काबिलियत हो कि वो उसको निभा सकें, उस इंटेंसिटी को, उस डेप्थ को। तो वामिका की कास्टिंग में हमें बहुत वक्त भी लगा कि फ़िल्म की बाकी सारी कास्टिंग हो चुकी थी और हम मनु को अभी भी ढूंढ रहे थे कि कौन है वो एक्टर जो मनु होगी, जो मनु कर सकती है। तो कास्टिंग मुकेश छाबरा कर रहे थे। जी। तो बहुत सारे एक्टर्स से मिल रहे थे हम और टेस्ट कर रहे थे, उनके साथ वर्कशॉप कर रहे थे और वो तलाश चल रही थी। फिर मुकेश छाबरा की टीम में एक उनकी एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर थी आयुषी ने वामिका का नाम सजेस्ट किया। और इत्तेफाक की बात आपको बताऊं कि मैं तो और पहले से बम्बई में और इसके पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, तो मैं वामिका का नाम उससे पहले से सुन रहा था। अच्छा। हाँ, कई मेरे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, कास्टिंग डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर्स से, कि वो नाम मुझे सजेस्ट किया करते थे कि एक एक्टर है और बड़ी अच्छी एक्टर है। तो शायद वो कहीं सितारे इस तरफ जा रहे थे कि इस तरीके से हमें जुड़ना था, है ना। तो वो क्यूरियोसिटी मुझे थी वामिका के नाम को लेके, क्योंकि उसकी काबिलियत थी कि वो लोगों को भी नज़र आ रहा था जो और दूसरे लोग मिल रहे होंगे। और वो इस तरीके से जाके हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई कि जब मैंने कहा कि मुझे ओरिजिनल ऑथेंटिक परफॉर्मेंस जो कर सके, तो फिर वामिका का नाम आया। फिर वामिका ने ऑडिशन किया, वो ऑडिशन देखा मैंने, उसमें वो चीज़ नज़र आई मुझे जो मनु के लिए चाहिए थी। फिर वामिका से मुलाकात हुई, तो ऐसे करके वामिका मनु बनी। तो फाइनली वामिका पार्ट बन गई ग्रहण का। और वामिका के साथ जो एक्सपीरियंस बाद में रहा, क्योंकि एक एक्टर की आपने कैपेबिलिटी देख ली और ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि सुनने के बाद कि हाँ एक अच्छी एक्ट्रेस है। सो उसके बाद जब आपने एक्सपीरियंस किया, सो उस एक्सपीरियंस में क्या निकल के आया या क्या आपको खास लगा जो वामिका को बाकी एक्टर्स से अलग करता है? तो देखिए, अब तो ग्रहण पूरी दुनिया देख चुकी है, तो वामिका की काबिलियत तो अब हर कोई देख चुका है। और तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं बताऊं एज अ डायरेक्टर, एज अ मेकर, एज अ क्रिएटर, तो वामिका बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। वो बहुत ही अलाइव, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। और वामिका का जो पोटेंशियल है, ग्रहण उनके साथ करते हुए और ग्रहण जब बन गया और जिस तरीके से वो चीज़ नज़र आती है और जो प्यार मिला मनु को, हज़ारों लोगों ने मनु को चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो नेशनल वो बन गई थी कि जैसे एक समय पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद सिमरन और राज की जोड़ी की बात होती थी, वैसे मनु और ऋषि की बातें हो रही थी। और इनको जाने कितने दर्शक हैं जो चिट्ठियाँ लिख रहे थे, 14 साल के बच्चे ग्रहण के ऊपर निबंध लिख रहे थे, 80 साल की दादी नानी फ़ोन करके रो रही थी भावुक होकर कहानी देख के। तो क्योंकि वामिका ने उस लेवल पे परफॉर्म किया, वो चीज़ लोगों को इतना टच करी, मूव करी, तो मैं ये कहूँगा कि वामिका का जो टैलेंट है, जो उनका स्किल है, वो नेशनल पोटेंशियल का है। ये मेरा कहने से मतलब ये है कि जैसे वामिका ने इससे पहले पंजाबी लैंग्वेज की फिल्में करी हैं, तेलुगु सिनेमा में भी काम किया, वो भी किया है, तेलुगु भी किया है ना। तो वामिका की जो स्क्रीन प्रेजेंस है और वामिका का जो टैलेंट है, परफॉर्मेंस का लेवल है, वो किसी एक भाषा में सीमित नहीं हो सकता है।
वो नेशनल पोटेंशियल है, राइट वो पूरे देश को देखना चाहिए और वो उस तरीके की फिल्में करेंगी, आई एम श्योर, और कर भी रही हैं वामिका अभी। जी। तो रंजन जी, आपकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं देखता हूं कि पीरियड ड्रामा या फिर कह लो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और स्पेशली जिनका कहीं ना कहीं देश के ऊपर असर है, देश के लोगों के ऊपर असर है, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करते हैं। इवन जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, सर ने अपना प्रोजेक्ट डिस्कस किया, मैं पंजाबी दर्शकों ने भी दसी है ना, सो इन्होंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया जो कि 1971 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? हाँ तो क्योंकि जैसे ग्रहण 84 के वक्त में सेट था और कहीं ना कहीं एक सोशियो पॉलिटिकल नेशनल माहौल को दर्शाता है, और मेरे आने वाले भी जो फिल्म हैं और शोज़ हैं उसमें से भी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो पीरियड ड्रामा है, और जिसमें से एक कहानी जो है वो इंडिया पाकिस्तान वॉर के प्रेमाइस में सेट है। तो जो आपका सवाल है वो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री फैसिनेट्स मी, जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट हैं, जो बड़े सोशियो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत लोगों को बहुत तरह से अफेक्ट किया है, तो वो कहानियाँ मुझे फैसिनेट करती हैं। और उनका वो लार्जर देन लाइफ ड्रामा, उनका वो क्लासिकल कैनवस, वो मुझे इंटरेस्ट करता है और वो कहानियाँ मैं कहना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि लोग देखें। और अगर हम पंजाबी लोगों की बात करें या फिर देश की बात करें, पंजाबी ही देश का पार्ट, पंजाब भी देश का पार्ट, और आज जो पाकिस्तान अलग हो गया, सो 1947 का जो वो इवेंट था, जो हमारा पार्टीशन रहा, पार्टीशन के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो मतलब इमेजिनेशन से भी बहुत परे थी। बात की जाती है कि करीब करीब 8 लोग जो थे वो उसमें अपनी जान गंवा गए। और अगर पंजाब की मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी जाके अगर लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि पार्टीशन के बाद उन गाँव को स्पेशली साफ़ करना पड़ा था। वहाँ पे लाशों के ढेर थे, खेतों के जो बीच में से पानी जाने की जगह होती है, वहाँ पे पानी की जगह पे लोग अगर चुल्लू ऐसे भरते थे तो उसमें खून हुआ करता। सो ये था। सो आपसे एक उम्मीद की जा सकती, क्योंकि आप ऐसी डायरेक्शन करते हैं, सो लगता है कि उस पार्टीशन के ऊपर भी कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ आप लेकर आएंगे या आपको लाना चाहिए? बहुत जल्दी मेरे आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक कहानी है जो 1947 पार्टीशन के वक्त की कहानी है। क्या बात है, आपने दिल की बात छीन। जी वही बात हो गई। आपने कहा कि आप चाहते हैं, और हाँ, हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी। सो उस हिस्टोरिकल इवेंट को आप कैसे लेते हैं, आपके नज़रिए में कैसे लेते हैं? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्लासिकल ट्रेजेडी है ना। हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में कोई है नहीं। हिंदुस्तान में जितने डाइवर्स कल्चर हैं, जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, इतने अलग अलग धर्म, उन धर्मों के अंदर इतनी अलग अलग कास्ट, मतलब आप अगर चले जाएं वेस्ट में और किसी बड़े से बड़े देश को उठा के देखें, अमेरिका जो है वो यहाँ के एक प्रदेश के बराबर है, ठीक है। तो हमारे देश में इतने अलग अलग तरह के धर्म, इतनी अलग अलग तरीके की जातियाँ, इतनी अलग अलग तरीके की भाषाएं, इतने तरह के लोग, उसके बाद भी ये देश इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मुझे इश्क है हिंदुस्तान से, ऐसा कोई दूसरा देश है नहीं और ना हो सकता है। तो हाँ, मुझे अपने देश के लिए ऐसे फील होता है। और जो हम लोग पार्टीशन की बात कर रहे थे, तो वो तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और जिन लोगों के साथ हुआ वो दोबारा ना हो, है ना। अब मैं अगर एज ए स्टोरी टेलर, एज ए फिल्म मेकर बात करूं, तो जैसा मैंने कहा कि हाँ, मुझे ये क्लासिकल कैनवस ये बहुत फैसिनेट करता है। तो डेफिनेटली मैं इस क्लासिकल ट्रेजेडी पे एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू से, एम्पैथेटिक व्यू से ज़रूर कुछ बनाना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें।
जो जिनके साथ हुआ अगर उनको दर्द है तो वो किसी तरीके से हील कर सके उन्हें, और या जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें किसी एक वर्ग ने गलत किया तो उनके लिए भी कुछ रिडेम्पशन हो, कुछ उनके लिए भी समझने वाली बात हो। जैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ग्रहण जब आया था तो ग्रहण आने के बाद मुझे एक एनोनिमस मैसेज आया था सोशल मीडिया पे। वो एक लेटर था और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था, मैं वो मैसेज आपको दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन पे है वे। वो मैसेज ये था कि जिसने लिखा था वो ये कहता है कि 1984 के वक्त मैं 17 साल का लड़का था और शहर में दंगे हो गए। वो उस वर्ग से था जो लोग जुल्म कर रहे थे, तो उसने कहा कि भीड़ कर रही थी, मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गया और मैंने जिन लोगों के साथ हो रहा था उनके घर पे पत्थर फेंके। और वो आदमी कहता है कि आज उस बात को 30-35 साल होने जा रहे हैं और वो जो मैंने किया था वो बात मुझे आज तक कहीं ना कहीं कचोटती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी उस फीलिंग का क्या करूं। उसने कहा कि ग्रहण देखने के बाद मैं उस परिवार के पास गया और अब वो तो नहीं है जो उस वक्त थे, लेकिन उनकी पीढ़ियां हैं। मैं उनसे मिला और मैंने माफ़ी मांगी है उनसे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। और मैं जब भी किसी ऐसे सोशियो पॉलिटिकल इंसिडेंट पे कुछ बनाना चाहूँगा तो मैं हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू से बनाना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं बनाना चाहूँगा कि इन्होंने किया या इनके साथ हुआ। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी माहौल था उस वक्त, उसमें जिनके साथ हुआ या जिन्होंने किया या जिनसे हुआ वो दोबारा ना हो। राइट, है ना? वो चीज़ दोबारा ना पनपे। और कितना अच्छा लगता है जिस टाइम पे आपका कोई एफर्ट एक इंसान के ऊपर भी असर कर दे। सो मुझे लगता है कि सक्सेस हो गया आपका वो एफर्ट जो है ना? ज़रूर। मतलब एक चीज़ तो है कि हाँ, हमारा एफर्ट है, बाहर आता है तो फिल्म इंडस्ट्री है, दर्शक हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार भेजते हैं। लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो बदलाव है, ये जो बदलाव है, जो किसी को इस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। ये बहुत सेटिस्फैक्टरी है। ग्रेट। बहुत काम की बातें कही हो गई। अब मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। डायरेक्शन कैसे स्टार्ट की, लाइक कैसे लगा कि मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए? तो डायरेक्शन की तो मेरी कहानी बहुत लंबी है। मैं हूँ यूपी से, उत्तर प्रदेश से, और मैं एक किसान परिवार से हूँ और हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था फिल्म इंडस्ट्री या इनसे। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से ही कहानी किस्से कहने सुनने में बहुत ज़्यादा रुझान था। तो मेरा बहुत ज़्यादा वक्त दोस्तों, यारों, घर परिवार, बहन भाइयों के बीच में बैठ के कहानियाँ कहने सुनने में जाता था। वो एक पर्सनल इंक्लिनेशन था। तो पढ़ाई के तौर पे मैंने MBA किया था पुणे से, फिर बैंगलोर में नौकरी करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तब मैंने अपना जो ये एक बहुत पर्सनल कोर इंटरेस्ट था उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उस समय फिर मैंने बहुत सारी फिल्में देखी जिनमें इंटरेस्ट था, उन फिल्मों के बारे में जानना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये फिल्में बनती कैसे हैं, इनकी कहानी कैसे बनती है, कौन लिखता है, कैसे चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कौन बनाता है, उन चीज़ों में इंटरेस्ट होने लग गया। फिर उस वक्त के जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स थे, जैसे अनुराग कश्यप हैं, ये लोग मुझे इनका काम मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, बहुत इंस्पायर कर रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बैंगलोर छोड़ के बम्बई चला गया और बैंगलोर जाके, जैसे सब बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है, कि मैंने वहाँ ढूंढना शुरू किया कि पिक्चरें बनती कहाँ हैं, कौन सी वो जगह है जहाँ ये सब होता है। लोगों से पूछते पता चला, किसी दोस्त के साथ ठहरा, पूछने में पता चला कि हाँ, ये एरिया है, अंधेरी है, वर्सोवा है, जहाँ पिक्चरें बनती हैं, जहाँ पिक्चरों के ऑफिस हैं। तो वहाँ ऑफिस जा के लोगों से काम मांगना शुरू किया। वो एक अच्छा खासा वक्त गया उसमें 3-4 साल का वक्त गया, लोगों से मिलने की कोशिश करना, फिर मिलना, फिर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक वक्त आया जब मैं अनुराग कश्यप से मिला। हाँ, जिनकी फिल्में देख के मैं इंस्पायर हुआ था और शहर छोड़ के बम्बई आ गए थे, वो मिले। और अनुराग कश्यप जैसा कोई दूसरा है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। जिस तरीके से वो
फिल्म मेकिंग के प्रमोटर हैं, सिनेमा के प्रमोटर हैं, कि अगर आप में इच्छा है, आप बनाना चाहते हो तो आओ, कोशिश करो, बनाओ, सीखो, गलतियां करो। तो मैं उनके पास लिख लिख के चीज़ें ले जाता था, उससे वो पहचानने लगे। फिर ऐसे 1-2 साल तक चलता रहा कि हम लोग मिलते रहे, कुछ लिख के उनको सुनाते रहे, पढ़ते रहे। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे अपने सिस्टम का पार्ट बनाया और एज अ क्रिएटिव असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने मुझे लिया। वहाँ से एक तरीके से मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग हुई। मैंने नज़दीक से जाना कि फ़िल्में बनती कैसे हैं, और मुझे लिखने में इंटरेस्ट था। तो फिर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी मुक्काबाज नाम की, उसके डायलॉग्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया लिखने में। फिर एक नीरज घेवन नाम के फ़िल्म मेकर थे जिन्होंने मसान बनाई थी, उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जूस, उसमें मैंने नीरज के साथ स्क्रिप्ट लिखी। फिर मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसका नाम था जान जिगर, तो वो बनाई 2017 में, 18 में वो फेस्टिवल्स में गई। फिर मैंने अपनी पहली फ़ीचर फिल्म बनाई बम्फाड़ नाम की, वो अब ZEE5 पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद मैंने ग्रहण बनाया। पंजाब के साथ एक अलग लगाव आपका, आखिरी सवाल है मेरा, पंजाब के साथ एक अलग लगाव आपका, कुछ खास कारण? पंजाब की धरती मुझे बहुत फैसिनेट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। पंजाब की पोइट्री, पंजाब के गीत, पंजाब की वो लार्जर देन लाइफ रोमांटिक स्टोरीज़, चाहे वो हीर रांझा हो, सोनी महिवाल हो, पाश, चमकीला, शिव बटालवी, तो ये सब लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। तो हाँ, है कुछ पंजाब की ज़मीन में वो बात है जो प्यार होता है यहाँ से। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, और जैसे आप लार्जर देन लाइफ सिनेमा जो है वो लेकर आते रहे हैं, ऐसे ही आप आगे लाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।